and happy. Today we will read this chapter 6, new questions and ideas. Okay, let's start now this chapter. First of all, we discuss the new questions and ideas. Okay, let's start now this chapter. During the 16th century BC, around 2500 years ago, life both in cities as well as places were changing fast. जैसे जैसे 25वीं शताब्दी का युग आता है, वैसे वैसे गांव से शहरों, शहरों से महानगरों में कैसी परिवर्तन होता है, ये जानते हैं. It was a period of the religious revolution in various parts of the world. It was an age when great religious teachers, philosophers and thinkers lived. यहाँ तक कि जैसे जैसे रिवोल्यूशनरी परिवर्तन आता है, एक नई क्रांति आती है, उसी तरह जो शहरों में, गांव में रहने वाले लोग होते हैं, चाहे वो फिलोसफर हो, चाहे वो टीचर हो, या फिर कोई भी ग्रेट थिंकर ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ वो बदलाव चाहते हैं. और उसी परिवर्तन, उसी बदलाव के कारण जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनसे हमारे जीवन में एक नया बड़ा परिवर्तन भी आता है. ठीक है. Their ideas and the main revolutionary changes in all aspects life in India through religious group developed Buddhism and Jainism. Okay. Number first of all, we discuss the cause for the rise of the Jainism and Buddhism. सबसे पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म का उद्गम कैसे हुआ, चलिए पढ़ते हैं. Mentality in the ancient India, religious life was simple. जैसे प्राचीन भारत में जाना जाता है, जो भी हमारी रिलीजियस लाइफ थी वो बहुत ज्यादा सिंपल थी, साधारण सी थी. However, during the later Vedic period, complex rituals, superstitious and the ceremony begins to dominate the practice of worship. और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहना, पूजा पाठ करना, केवल वो उतने ही कायदे कानून से घिरे हुए थे. Poor people were unable to observe them. Religious lost his simplicity and appeal. Following mentions factors were the conducive for the origin and the growth of the new ideas and the religion. The most prominent began Buddhism and Jainism. और धीरे धीरे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल करता है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, कि इनका उद्गम कैसे हुआ, इन्होंने कैसे परिवर्तन किया और कैसे लोगों को, जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया. ओके. Number first, during the early Vedic period, Hindu society was divided into 4 varnas or castes on the basis of the person's occupations. यहाँ तक कि जल्दी ही वैदिक पीरियड में जैसे आया, उसमें हिंदू धर्म को निम्न 4 वर्णों में बांट दिया गया. ठीक है, जिसे हम 4 जातियां भी कहते हैं. By the later Vedic period, the system became rigid, leading to inequalities amongst the people. यहाँ तक कि जैसे ही वैदिक युग का शुभ आरंभ हुआ, वैसे वैसे लोगों में परिवर्तन हुआ और लोगों में जो असमानता की भावना जो जागृत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी. The Buddhism, the Brahmins exercised dominations over the other 3 castes, so much so that the lower castes were denied the right to the practice religion. हमारी सबसे ऊंची जाति है, जिसे हम ब्राह्मण जाति कहते हैं, वो जाति ऐसा मानती थी कि बाकी जो जातियां हैं वो उससे लोअर है, नीचे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रथम दर्जा दिया गया वो ब्राह्मण जाति को दिया गया था. Next, most of the religious literature was in the Sanskrit, while the common people spoke Prakrit and Pali. यहाँ तक कि सबसे पहले जो धार्मिक भाषा की शुरुआत हुई वो संस्कृत भाषा से हुई, और संस्कृत भाषा का उद्गम प्राकृत और पाली से लिया जाता है. The Brahmins looked advantages of the people, ignorance, interpreted religion according to their convenience and increase their power and value. धीरे धीरे जो ब्राह्मण जनजाति थी वो इतनी बुद्धिमान होती थी, तो ऐसा माना जाता था जो सबसे ज्यादा धनवान है और जो ज्ञानवान है वो केवल वही एक श्रेष्ठ जाति है जिसको हम ब्राह्मण का संज्ञा देते हैं. नेक्स्ट, animal sacrifice in the form of the killing of the cows
and the buffaloes became common and was strongly disliked by the people. यहाँ तक कि कुछ जनजातियों में जानवरों की बलि देने का भी अधिकार था, लेकिन जो गाय और भैंसे थी उनका बलि देना स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि गाय को किसकी ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती थी. Okay? The people were eager for the changes in the form of a simple religion which would remove the evils in the society. धीरे धीरे जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म अपनाया जाने लगा, वैसे वैसे समाज से बहुत सारी बुराइयों को कम कर दिया गया. कि सोचा जाने लगा कि कैसे इस समाज से बुराइयों को हटाया जाए, कैसे नया परिवर्तन किया जाए जिससे लोगों में सुधार हो. आगे है बुद्धिज्म. गौतम बुद्धा was the founder of Buddhism. Okay? He was born around 2500 years ago. His real name was Siddhartha. His father Suddhodana was the king of the small Gana known as the Sakya Gan and was a Kshatriya by birth. Okay? His mother's name was the Maya Devi. He was born at a garden in Lumbini. As a young prince, he had all the comforts of the life, but he was not satisfied. जैसे गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने बुद्धिज्म धर्म के संस्थापक थे. उनके पिता सुद्धोधना और उनकी माता माया देवी एक बहुत अच्छे लुम्बिनी क्षेत्र के राजा थे, लेकिन उनका जो रियल नाम था वो था सिद्धार्थ. सिद्धार्थ इतने अमीरी में सिद्धार्थ एक राजकुमार थे. राजकुमार होने के साथ साथ वो इतने धनवान थे, इतने अमीर थे, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनका जन्म जो हुआ है वो केवल राजभोग भोगने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए हुआ है. He wanted to know the real meaning of life. वास्तविक रूप से वो अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना चाहते थे. तो जानने के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और एक तपस्वी की तरह निकल गए. In the quest of truth. When he was young man, जब वो जवान थे, he left the comfort of his home. उन्होंने अपने आरामदायक जैसे घर को छोड़ दिया and set out in the search of knowledge. और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े. He wandered for 6 years and met several sons and servants. यहाँ तक कि वो चाहते थे कि वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे उन्हें जीवन का सही अर्थ जानने के लिए जब वो अपना घर बार छोड़कर निकले थे, तो उन्हें एक ऐसे ऋषियों की तलाश थी जो उन्हें उनके जीवन का सही अर्थ बता सके. But he was not satisfied with their views about life. At last, he decided to find his own path and the research बोध गया. जल्दी ही वो एक ऐसे नए पथ पर चले जिससे उन्होंने जीवन का कुछ नया करने का सोचा. इसलिए वो बोध गया गए और अपने जीवन में कुछ करने के लिए, अपने जीवन का सही अर्थ जानने के लिए उन्होंने वहां पर तपस्या की. Okay? बिहार where he sat under people tree and began to meditate. जल्दी ही उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और ध्यान लगाना शुरू किया, मीन तपस्या करनी शुरू कर. After many days and the months of the intense presence, he attained enlightenment. जल्दी ही कुछ महीने साल बीतते गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में इतना ज्ञान अर्जन कर लिया था, क्योंकि वो धीरे धीरे जानने लगे थे कि उनके जीवन का सही अर्थ क्या है. Release the real meaning of the life and the cause of the suffering in the world. After that, he became known as the Buddha or the wise. जल्दी ही जब वो जीवन का सही अर्थ जान गए, तब उनको वास्तविक रूप से उन्हें बुद्ध या फिर उन्हें एक वाइज मीन बुद्धिमानी के संत के नाम से पुकारा जाने लगा. The people tree under which he attained enlightenment. उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जैसे उन्होंने तप और ज्ञान लिया, came to be known as the बोधि वृक्ष और the tree of wisdom. तो उस पीपल के पेड़ को एक नया नाम दिया गया जिसका नाम दिया गया बोधि वृक्ष या फिर बुद्धिमानी का पेड़. From there
he went to the Sarnath near Varanasi and gave his the first sermons at the deer park there. He wanted to Sarnath near Varanasi and gave his first sermon at the deer park there. जल्दी ही वो सारनाथ गए जो वाराणसी के पास थी और उन्होंने पहला अपना वहां पर उपदेश दिया. इट नॉन एज द धर्म चक्र परिवर्तन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया. He spent the rest of his life traveling from one place to another and the preaching his message of love. सबसे पहले उन्होंने प्यार, शांति और समृद्धि के लिए पहला उपदेश जारी किया. He attended his the निर्वाण at the कुशीनगर. उसके बाद उन्होंने कुशीनगर में जाकर निर्माण के लिए कार्य किए. Next are main teachings of Buddha. The main teaching of the Lord Buddha are the Four Noble Truths and the Eightfold Path or the Ashtanga Marg, which as a under. Okay. The fourth noble truth. Number first, the world is full of suffering and unhappiness. सबसे पहले उन्होंने जाना कि जो संसार है वो कैसा है, सफरिंग मतलब फुल है, किससे, सफरिंग से, दुखों से और अनहैप्पीनेस से. ओके. सेकंड, मैन सफर्स बिकॉज ऑफ हिज कार्विंग और डिजायर्स, क्योंकि लोगों की इतनी इच्छाएं हैं कि एक के बाद एक इच्छा पूरी करने के लिए वो हमेशा एप्रसन ही रहता है. नेक्स्ट, in order to get rid of the suffering one must get rid of the one desire. तो उन्होंने ये ऐसी धारणा बनाई कि यदि मनुष्य केवल एक इच्छा रखे तो वह जल्दी पूरी हो जाएगी और मनुष्य कभी परेशान या दुख का भोगी नहीं होगा. क्योंकि मनुष्य क्या है, यदि एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी इच्छा उससे जल्दी जन्म ले लेती है और फिर वह उसके पीछे छोड़कर अगली वाली इच्छा पूरी करने के लिए पीछे भागने लगता है. इसलिए वह हमेशा ना तो कभी संतुष्ट होता है और ना कभी खुशी के पल जी पाता है. To get rid of the desires and the one must follow the eightfold path, the rightfold path. For example, number first is right hope, second right belief, right speech and right action, right means of the livelihood and right effort, right memory और नंबर 8 पर है राइट मेडिटेशन. ओके. ये गौतम बुद्ध ने 8 रास्ते बताए जिससे मनुष्य सही तरीके से अपनी जीवन का निर्वाह कर सकता है, शांति पूर्वक रह सकता है और खुशी के साथ अपने कार्यों को आगे करता रहता है और सही मायने में अपने जीवन का उद्देश्य जान सकता है. ओके. Lord Buddha said that a person should neither live in great luxury nor should be given up everything. यहाँ तक कि जो लॉर्ड बुद्धा था वो ऐसा जाना जाते थे, वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे कि वो उन्हें ना तो किसी लग्जरी लाइफ से कोई मतलब था और ना ज्यादा किसी से, बल्कि वो किसी के दुख से परेशान जरूर होते थे लेकिन उसका निर्वाह करने के लिए उनके पास इतनी सॉल्यूशन थे कि वो आसानी से उसका निर्वाह कर देते थे. ठीक है. Rather, he should live a balanced life and that the eightfold path can lead a person to it. अर्थात वो प्रत्येक व्यक्ति को उन 8 पथ के बारे में बताते थे जिससे मनुष्य एक नए ज्ञान की तरफ बढ़ सके. Only by leading a balanced life, a man can attain मोक्षा और निर्वाण. यहाँ तक जल्दी ही वो उनका ऐसा मानना था कि जल्द ही यदि कोई व्यक्ति इन 8 रास्तों पर चले तो उसे जल्दी ही मोक्ष की या फिर निर्वाण की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी. लॉर्ड बुद्धा was against caste, rituals और animals sacrifice. जो लॉर्ड बुद्धा थे वो हमेशा इसके विरुद्ध थे कि कास्ट के, रिचुअल्स के और एनिमल सेक्रीफाइस के हमेशा विरुद्ध रहा करते थे. He believed in the अहिंसा और the non-violence to all living beings. He believed that all peoples are equal and should be treated accordingly. यहाँ तक कि उनका ऐसा मानना था कि यहाँ पर संसार में रहने वाले सभी प्राणी चाहे जानवर हो
चाहे पशु पक्षी हो चाहे मानव हो, सभी एक समान है, सभी को एक समान तरीके से रहने का अधिकार है। Okay? The teaching of the Buddha have been compiled into the three books called Tripitaka, जिसे नाम दिया गया थ्री बास्केट्स का। The Jataka tales, which desire to describe the previous birth of the Buddha, are another significant contribution to literature. यहाँ तक कि जो जटाका टेल्स थी उसमें गौतम बुद्ध के बारे में जीवन दर्शन को दर्शाया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपने आप को सुधार किया और कैसे वो निर्वाण की तरफ उसको ले गए। बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। बुद्धा कभी भी कास्ट सिस्टम पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि प्रीच्ड इक्वलिटी ऑफ द पीपल, बल्कि वो लोगों को समानता का उपदेश दिया करते थे। He did not speak of God, यहाँ तक कि वो कभी ये नहीं बताते थे कि भगवान ऐसा कहता है, बल्कि वो हमेशा ये समझाते थे कि लोग जो भी हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, सब इक्वल है। ओके, He emphasizes more values like honesty, non-violence, respect of elders and the kindness to all living things. He preached the values of, वो प्रत्येक को यह आदेश देते थे कि सभी समान हैं और सभी जो भी जीव जगत में कार्य किए जाते हैं वो भी सभी के लिए बनाए गए हैं। इसमें ना कोई कास्ट अपर है ना कोई लोअर है। ओके, जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया अहिंसा के बारे में। One must avoid violence of any kind. Number second, कर्म। One action decide one destiny और fate। यहाँ तक कि उनका ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य पर, मतलब जो भी वो कार्य करे, एक कार्य करे, लेकिन वो पूरी निष्ठा के साथ करे। For good deeds are the reward and evil deeds are punished। यहाँ तक कि यदि हम अच्छी सोच के साथ कार्य करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और यदि हम बुरी सोच के साथ कार्य करते हैं तो हमें दंड अवश्य मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है निर्वाण। The final good in life is to attain nirvana or the freedom from the cycle of the life and death। यदि हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है तो हमें निर्वाण की तरफ बढ़ना होगा, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए ये 8 फोल्ड्स जो आपको बताए थे इन पर चलना होगा, तभी हम एक दिन लाइफ और डेथ के इस साइकिल से बच सकते हैं। The monastery where the Buddhist monks lived were known as the Vihar। यहाँ तक कि जब गौतम बुद्ध जगह जगह पर अपने ज्ञान के लिए बैठे और ज्ञान प्राप्त किया, उसी को वो विहार कहते हैं। ओके, जगह जगह जाना, ज्ञान प्राप्त करना और एक नए सिद्धांत के साथ उसको फॉलो करना, उसी को कहा जाता है विहार। Next, the story of the Kaushamgati. Next है the story of the Kisa Gautami. Okay, let's start now. Here is a famous story about Lord Buddha। यहाँ पर एक famous story है Lord Buddha की। Kisa Gautami was a poor widow। जो Kisa Gautami थी एक poor widow थी। Once she came to the Lord Buddha। एक बार वह Lord Buddha के पास आती है। She was in the deep sorrow। वह उसे देखती है, वो पहुंच जाता, तब वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। As her only child was dead, केवल उसका एक बच्चा होता है, वो भी मरा हुआ होता है। She requested Lord Buddha to bring her child back to life by using a divine power। तब वह लॉर्ड बुद्धा से आकर मिलती है और आग्रह करती है कि वह उसको मृत बच्चे को वापस दैवीय शक्ति के द्वारा उसको जीवित कर दे। Lord Buddha was touched by the plight of the poor widow। जैसे ही लॉर्ड बुद्धा अपनी उस दिव्य दृष्टि से, उस जादुई भरी नेत्रों से जब उस बेचारी विडो को देखते हैं, तो गिविंग हर ए बाउल ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस बट दैट नेवर एंटर्ड। तो वह उसे एक बाउल देते हैं जिसमें येलो मस्टर्ड भरी होती है और वो कह देते हैं इसे ले जाकर अपने घर में चारों तरफ फेर दो, और जब तुम इसे बिखेर दोगे तुम्हारा बेबी जिंदा हो जाएगा और कभी भी डेथ तुम्हें छू नहीं पाएगी। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जब वो देखते हैं, अर्थात उसको
जो दुख में होती है, जो मोह माया का जो जाल होता है वह उसकी आंखों से हटा देते हैं, अर्थात उसे एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करा देते हैं कि वो लाइफ और डेथ के साइकिल से फ्री हो जाती है, अर्थात दोनों माँ बेटे वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है किस गौतमी बिकेम्स होपफुल। जो किस गौतमी थी वो बहुत ज्यादा आशावादी होती है। शी लुक्ड अबाउट एंड वॉन्ट फॉर द डोर टू डोर बिगिंग फॉर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। यहाँ तक कि वो मुट्ठी भर भर के एक दरवाजे दूसरे दरवाजे तक उस पीली सरसों को सबको देती है, हाथ भर भर के, कि तुम भी इसे अगर अपने दरवाजे के बाहर डालोगे तो तुम लोग भी लाइफ और डेथ के साइकिल से छुटकारा पा जाओगे। बट nobody could give her arms as everybody had lost his dear one's father, mother, brother, sister, uncle, aunt and so on or daughter। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, न उसकी माँ बाप चाचा चाची, कोई उस पर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह बेचारी सभी से कहती है, लेकिन जैसे कि वो अपने घर में करती है तो वह जल्दी ही निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। ओके, अर्थात उस महिला को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। नेक्स्ट है स्प्रीड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं। Due to its simple, practical, and the realistic approach, Buddhism soon became popular among us the people. The language of the Buddhism was Pali. यहाँ तक कि जब सबसे पहले जब बुद्धिज्म का शुरुआत की गई तो बुद्धिज्म ने जो सबसे पहले जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए थे। The language of the masses, therefore, it was easily understood, क्योंकि पाली भाषा उस समय की ऐसी भाषा थी जिसे वहाँ के लोग आसानी से समझ सकते थे। The Buddhist संघास and the monasteries became centers of the learning and education। जल्दी ही उनके अनुयायियों ने उनके ज्ञान को सीखा और चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। Important rulers like बिम्बिसारा, अशोका, चंद्रगुप्ता and the Harshvardhana became followers of Buddhism। ये लोग क्या थे, बुद्धिज्म के अनुयायी थे। Due to their royal patronage, the religion spread beyond the borders of the India or to Sri Lanka, Southeast Asia, इंडोनेशिया, जावा, जापान एंड चाइना। धीरे धीरे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, जावा में, जापान में और चाइना में किया गया, क्योंकि वहाँ के लोग तो जब उस उपदेश को जाना, उसको सीखा तो उन्हें उसको मानने लगे और सबसे ज्यादा उसको मानने वाले, बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले लोग इन्हीं देशों में रहते हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म। Buddhism gradually declined and lost its prominence due to the following reasons. Number first, the inventions of the Hunas lead to the widespread destruction of the Buddhist Bihar। सबसे पहले तो बुद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार किया गया तो वो जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह जाते और अपना ज्ञान प्राप्त करते और वहाँ के लोगों में अपना ज्ञान बांटते, जिसे उन्होंने बिहार की संज्ञा दी है। नंबर सेकेंड, Hinduism became the purified and the reformed under the Gupta dynasty who patronized Hindus। और धीरे धीरे जब गुप्त वंश का शासनकाल शुरू हुआ तो उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्ध धर्म का सहारा लिया। ओके, नेक्स्ट है द उपनिषद्स। अराउंड द टाइम ऑफ द बुद्धा and perhaps a little earlier, contemporary thinkers also trying to find out of the real meaning of life। जल्दी ही बुद्धिज्म धर्म का जब प्रचार प्रसार बड़े जोर शोरों पर था तो उसी समय जो वहाँ के थिंकर थे, सोच विचारक थे, वो ये जानना चाहते थे कि यदि इसके प्रचार प्रसार से इतना परिवर्तन हो सकता है तो क्यों ना हम इसके साथ कुछ अन्य ज्ञान भी अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे इस जीवन में कितना परिवर्तन होगा। Some of them wanted to know about their life after death, while some others were trying to know the necessity of the sacrifice। कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि डेथ के बाद कि हमारे शरीर का क्या होता है और कैसे कैसे हमें यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। Most of them felt that there was a something that would last
इवन आफ्टर डेथ, और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद क्या किया जाता है और कैसे कैसे हमें उस रास्ते को कंप्लीट करना होता है। तो ये सब जानने के लिए जो हमारे थिंकर थे, ग्रेट थिंकर्स थे, उन्होंने और अधिक जानने के लिए कि जन्म से पहले तो अपना जन्म क्या है तथा हमारा जीवन क्या है, और मृत्यु के बाद हमारा जीवन क्या है, उसको और जानने के लिए उन्होंने अधिक ज्ञान और तप का सहारा लिया और सब जगह अपने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोरों से किया। The term at the term it as Atmas or the individual souls, the Brahmans or the universal soul. जब धीरे धीरे जब उन्होंने जाना कि आफ्टर डेथ, है ना, आफ्टर डेथ जो हमारा जीवन है उसको हमें इतना पवित्र, उसको इसके शरीर को इतना पवित्र कर देना चाहिए कि वो एक ग्रेट साउल, जस्ट लाइक अ ग्रेट साउल, कि वो एक महान आत्मा की तरह बन जाए। They also believe that the Atmans or the Brahmans live even after death. तो जैसे कि ऐसा विश्वास था कि जैसे एक महान ब्राह्मण या एक महान विद्वान होता है, उसकी आत्मा कभी मरती नहीं है बल्कि वो अमर हो जाती है और इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसे भगवान की संज्ञा दी जाने लगती है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन को ऐसा सार्थक करना चाहिए कि वो भी एक ग्रेट ब्राह्मण की तरह और एक ग्रेट स्कॉलर्स की तरह हमारी आत्मा भी एक अजर अमर बन जाए और उसको भगवान की तरफ पूजनीय होना पड़े। ओके, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द उपनिषद इज अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द आइडियाज एंड द टीचिंग ऑफ these the thinkers were recorded in the Upanishad, which was a part of the later Vedic texts. The literary meaning of the Upanishad is approaching and sitting near. The Upanishads were written between the 18th and the 4th century BC. और जब इसी के ऊपर जो धारणाएं अपनाई गई वो उपनिषदों के द्वारा लिखी गई। उपनिषदों में लगभग 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी की मध्य उपनिषदों के बारे में लिखा गया कि हमारे उपनिषद कहते हैं कि यदि आत्मा जो है, जो साउल है, वो एक यूनिवर्सल, एक पावरफुल है ना, जिसे हमें और भी अधिक पावरफुल और ग्रेट बनाने के लिए हमें अपनी मृत्यु से पहले ऐसे कार्य करने चाहिए, सही मायने में अपने जीवन दर्शन को पहचानना चाहिए और ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी आत्मा मरने के बाद भी ग्रेट, एक महान और एक पावरफुल, जस्ट लाइक अ लॉर्ड साउल बन सके। देयर इज द controversy over the total numbers of the Upanishads available. According to some historians, they are 118 numbers of these. Are the 11 are the thoughts to be the main Upanishad. जैसे कि हमने जाना गया कि हमारे यहाँ पर उपनिषद कितने हैं, वो 108 हैं, जिनमें से मुख्य उपनिषद 11 हैं। फर्स्ट ईशा उपनिषद, कथा उपनिषद और मुंडका उपनिषद, केना उपनिषद, प्रसाना उपनिषद और मुंडकाया उपनिषद, सेवासत्रिय उपनिषद, तत्रीय उपनिषद और चंद्रज्ञा उपनिषद और अटार्य उपनिषद, और आगे है नंबर लास्ट 11 है बृहद्राग, और नंबर लास्ट में है बृहदारण्यक उपनिषद। ओके, द उपनिषद आर बेस्ड ऑन द फिलॉसफी। ये जितने भी उपनिषद है वो फिलॉसफी पर डिपेंड है, आधारित है। इन द कंपैरिजन टू द वेद, यदि वेद के अनुसार इन उपनिषदों की तुलना की जाए तो they are the more spiritual and the philosophical in nature. The Upanishad contains many ideas. The text in the Upanishad contains conversation between teachers and students. जो उपनिषद है वो हमेशा कन्वर्सेशन, उनकी बातें बताते हैं, टीचर और स्टूडेंट के मध्य कैसी बातें की जाती हैं और किन किन विषयों पर आधारित है। Which often the ideas were the presented through simple dialogues. Okay, the Upanishad makers were mostly Brahmins and kings who were men. Occasionally, there is the mention of the women thinkers like Gargi, who was a famous scholar of her time. जैसे ही जो महान थिंकर्स हैं, ब्राह्मण में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और राजा,
सबसे ज्यादा एक क्या है, टीचर और स्टूडेंट का नाता है। जब वो आपस में जो उनकी बातें होती है, उनका राज्य बढ़ाने का जो ढंग होता है, वो उन सभी चीजों को उपनिषद में बताया गया है। उसी तरह एक महिला वीमन महिला थिंकर थी जिनका नाम है गार्गी। गार्गी अपने समय की बहुत बड़ी महान स्कॉलर्स थी, जिन्होंने बुद्धिज्म धर्म का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया और लोगों को बताया कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। द उपनिषद स्पीक्स ऑन द इम्पोर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ टू वन गॉड। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि हमें हमेशा एक भगवान पर आधारित होना चाहिए, मीन एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। इट टीचेस हाउ द आत्मास और द इंडिविजुअल सोल कैन बी मेड ए पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल। क्योंकि यदि हम एक भगवान की पूजा करते हैं तो सभी भगवान एक है। जिस तरह मानो हम ओम को जपते हैं तो ओम सभी देवों का क्या है, एक है। ओम सभी देव उसी में ही समाहित होते हैं। इस तरह हमें केवल एक भगवान को मानने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है जैनिज्म। जैनिज्म क्या कहते हैं? वर्धमान महावीर वॉज द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन। जैन धर्म के सबसे जो पहली अनुयायी हैं वो हैं वर्धमान महावीर। He was a contemporary of the Lord Buddha and the priest. His masses almost around the same period. यहाँ तक कि बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए जिस तरह बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रचार प्रसार किया, बुद्ध धर्म की स्थापना की, उसी तरह जैन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने उसी तरह उपदेश दिए, जिससे लोगों में एक नया ज्ञान अर्जन हो सके। In the period 2500 years ago, around 540 BC, Mahavir, also known as the Nataputra, was born in a royal family at Kundagram near Vaishali in Bihar. बिहार में वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म एक नातापुत्र के रूप में हुआ था। His father was the head of the famous caste क्षत्रिय क्लैन। यहाँ तक कि उनके जो पिता थे वो क्षत्रिय जाति के क्या थे, मुखिया थे। एंड मदर त्रिशला वाज अ लिच्छवी प्रिंसेस, और उनकी जो माँ थी वो एक लिच्छवा की राजकुमारी थी। अकॉर्डिंग टू द जैन, महावीर वाज द लास्ट ऑफ द 24 तीर्थकर। यहाँ तक कि जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। फर्स्ट वाज द ऋषभदेव, और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। एंड वाज ग्रेट टीचर्स, जो एक महान उपदेशक थे। देयर टीचिंग्स पर्स्यूड द फोर्थ टू ऑफ द जैनिज्म, जिनके प्रचार प्रसार से जैन धर्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है इन द क्वेस्ट ऑफ द ट्रुथ, वो सच्चाई के रास्ते पर कैसे चले, ये पढ़ते हैं। महावीर लेफ्ट होम एट द एज ऑफ द 30। महावीर ने जल्दी ही जब वो 30 वर्ष के थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। For about 12 years, he wandered from place to place in search of knowledge. यहाँ तक कि वो 12 साल वन में घूमे, एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान की प्राप्ति के लिए। He became an monastic and undergone deep meditation. उन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने योग, साधना और ध्यान लगाना शुरू किया। Then one day, while in the meditation, he was blessed with the true knowledge. He came to be known as the Jina, or the great conqueror, as is the followers came to be known as Jains. यहाँ तक कि एक दिन जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उन्होंने देखा, जैसे वो ध्यान लगा रहे थे तो उन्होंने जाना कि सही ज्ञान क्या है, और सही ज्ञान को उन्होंने, जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उसका नाम दिया जीना। क्या नाम दिया? जीना। और जब उनके अनुयायियों ने उनकी ज्ञान की प्राप्ति की तो उनको नाम दिया उन्होंने जैन। क्या नाम दिया गया? जैन। महावीर traveled from one place to another to preaching his message. महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान का अर्जन करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया। He visited the court of Bimbisara and the Ajatashatru. महावीर
taught in the Prakritic, a language which the common people spoke. यहाँ तक कि उन्होंने बिंबिसारा और अजातशत्रु के दरबार में भी अपने ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो अपने ज्ञान का प्रसार प्राकृत भाषा में करते थे, क्योंकि वहां उस समय के जो लोग थे वो आम भाषा जो उनकी थी, जिस तरह हमारी हिंदी उस समय उनकी आम भाषा कॉमन लैंग्वेज प्राकृत थी। मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म, Lord Mahavir believed in the अहिंसा एंड द सिंपल लिविंग। जो लॉर्ड महावीर थे वो भी अहिंसा और साधारण जीवन पर विश्वास रखते थे। He believed every living being has a soul. He was against animal sacrifice and all sorts of the rituals. यहाँ तक कि वो भी ऐसे कायदे कानून के विरोधी थे जो मनुष्य और पशु जाति में इनइक्वालिटी की धारणा रखते थे। He preached that no harm should be made against any living beings. Okay? Mahavir didn't believe in the caste system. महावीर भी कोई से भी जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। According to him, every individual was born into a particular caste according to the deeds of the previous life. यहाँ तक कि वो किसी भी धर्म और प्रचार के या जाति के विरुद्ध कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करते थे, बल्कि वो सभी लोगों को समान मानते थे और उनको एक उनका जीवन बदलने के लिए ऐसे नए नए ज्ञान का अर्जन किया करते थे। However, anybody could attain moksha by performing good deeds. यहाँ तक कि वो ऐसे अच्छे ज्ञान का प्रचार करते थे जिससे लोग भक्ति की तरफ अग्रसर हो सके और जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति करें। According to the Mahavira, the ultimate goal of the human life should be make the soul free from all worldly bonds and not to born again in the world. This could be achieved through the Tirthanas or the three jewels of life. यहाँ तक कि महावीर स्वामी का अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य था जिसे तीर्था का नाम दिया गया, जिसमें वो अपने 3 रत्नों को अपने साथ रखते थे। 3 रत्न अर्थात उनके 3 ऐसी ज्ञान की बातें थी जिनको हमेशा वो लोगों को बताया करते थे। दे आर राइट फेथ, कि हमें सही विश्वास रखना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और हमें सही कार्य करना चाहिए। Spread of the Jainism. Over 100 of the years, Jainism spread of the different parts of the North India. It became more popular in the south and the western parts of the country. States like Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Malwa, Gujarat and Rajasthan also came under its influence. जैसे जैसे 100 साल पहले जब जैन धर्म की शुरुआत हुई, तो जैन धर्म में जब उन्होंने महावीर स्वामी ने प्रचार प्रसार किया तो सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जैसे कि कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, मालवा, गुजरात और राजस्थान में, जिसमें जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया गया। इट बिकेम मोर पॉपुलर अमंगस्ट द ट्रेडिंग कम्युनिटी। यहाँ तक कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा जागरूक किया गया। But the farmers who had to kill insect to protect their crops, लोगों में इतना विश्वास उत्पन्न हो गया था कि अगर कोई किसान खेती करते हुए भी यदि उसके सामने कोई कीड़ा आ जाता तो वह उसे बचा करके उसको प्रोटेक्ट करता था, अर्थात उसको ये नहीं कि वो मर रहा है, नहीं, तो वह उसको भी प्रोटेक्ट करने लगा। एंड द प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो। खेती करने में उसके सामने कितनी समस्या क्यों ना हो, लेकिन वह उस छोटी जीव को भी मारना नहीं चाहता था। उसे महावीर स्वामी ने ऐसा उपदेश दिए थे कि संसार में रहने वाले सभी प्राणी जो सांस लेते हैं सभी को समानता का अधिकार है। The later stage, the Jains were divided into 2 groups or sects. The Digambaras, those who don't wear clothes, or the and the Savetambras, those who wear white clothes. यहाँ तक कि तो जैन धर्म के 2 योगी हैं, उनका एक तो है दिगंबराज और एक है श्वेतंबराज। दिगंबराज वे संत होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते और श्वेतंबराज वो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। Decline of Jainism. Reasons of the decline of the Jainism are following. First, the Ahimsa principle of the Jainism was
pleased to the extreme, melted its heart the common people to follow. Number second, lack of the royal patronage. Third, the divine of the Jains into the seats weakened its position. Okay. Next है vihars. The vihar served as the temporary shelters during the rainy season. यहाँ तक कि वास्तविक रूप से जब बारिश का मौसम होता था उस समय जब उपदेश के लिए निकलते थे उसे विहार कहते थे. With supporters building them in the gardens or the monks residing in the natural caves. क्योंकि जो साधु संत होते थे वो किसी घर में या आवास में ना रहते थे बल्कि प्रकृति के बने हुए गुफाओं में या फिर बगीचों में पेड़ पौधों की शेड में रहा करते थे. और बताएं the demand for more the permanent dwellings lead to the construction of the monasteries known as the vihar. जब वो विहार के लिए निकलते थे या विहार के लिए जाना जाते थे तो वो ऐसी प्रकृति से बनी चीजों का प्रयोग करते थे. वो ऐसी कोई भी चीजों का प्रयोग नहीं करते थे जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती थी. और वहां जाकर के जब प्रचार प्रसार करते थे उसी को विहार का नाम दिया जाता था. Entirely crafted from wood and the later from bricks. Some vihars were even carved into the hills, particularly in the western India. Okay. Frequently, the vihar's location was granted by a wealthy merchant landowners of the monarch. कभी कभी विहार करने के लिए साधु संत होते थे वो तो या किसके यहाँ रुका करते थे ज्यादा, किसके द्वारा बुलाए जाते थे, वेल्दी मर्चेंट द्वारा, लैंड ओनर द्वारा या मोनार्च द्वारा. लोकल रेसिडेंट प्रेजेंटेड ऑफरिंग. और जो आसपास जो लोग होते थे जब वो कोई भी विद्वान या साधु जैनिज्म धर्म का कोई भी विद्वान जब प्रचार प्रसार के लिए आते थे जिसे हम विहार कहते हैं तो आम जनता जो होती थी उनके लिए व्यवस्था करती थी फूड की, क्लॉथिंग की एंड मेडिसिन की. टू बी द भिक्षु एंड द भिक्षुनीज, जिसे भिक्षु या फिर भिक्षुनीज के नाम से जाना जाता है. who reciprocated by the imparting teaching. और जब वो अपने ज्ञान से हमें उपदेश देते थे तो उनके ज्ञान से हम बलीभूत होकर मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते थे. Buddhism gradually expanded across the subcontinent and the beyond. A novel iterations Mahayana Buddhism embraced, marked by the creation of the Buddha statue, were sent in the place like the Mathura and Takshila. जैसे ही जब इस ज्ञान का प्रचार प्रसार खूब फैलाया गया तो महावीर स्वामी की बहुत बड़ी मूर्ति तक्षशिला के मध्य और मथुरा में स्थापित की गई. Additionally, a new emphasis on the Buddhist sattva. A new emphasis on the Buddhist sattva became say notably accept of this the evolving form of Buddhism. जल्दी ही बौद्ध धर्म के लोगों को जब ज्ञान के बारे में बताया गया तो उसे बौद्धिस्ट सत्व का नाम दिया गया. The individual who achieved enlightenment were originally meant to live in the isolation and medicate peacefully. जल्दी ही जैसे जैसे उनके ज्ञान पर प्रचार प्रसार और उन पर प्रकाश डाला गया धीरे जल्दी ही उनका ज्ञान बढ़ता चला गया. However, instead of the choosing solutions, they opted to stay in the world, dedicating themselves to teaching and educating others. Worship of Bodhisattva gained immense popularity, spreading across Central Asia, China. जल्दी ही जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत चरम सीमा पर था तो सबसे ज्यादा जो इसका ज्ञान फैलाया होगा मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो मिली कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में जैसे चाइना एंड द लेटर रीचिंग कोरिया एंड जापान. बुद्धिज्म एक्सपेंड टू द वेस्टर्न एंड द साउथर्न इंडिया वेयर न्यूमरस केव्स वर कार्व्ड इनटू हिल्स. यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर जब गुफाएं बनाई गई जिनमें बुद्धिज्म लोग रहा करते थे फॉर द भिक्षुस टू रिसाइड, जिसे का नाम दिया जाता था. Additionally, Buddhism extended southeastern ward to Sri Lanka,
Myanmar, Thailand, and the other parts of the Southeast Asia, with Sarvanda Buddhism being prominent in this region. जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बौद्ध धर्म का बढ़ाने में, वो कौन कौन सा है? जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, है ना, और साउथ ईस्ट एशिया, ओके, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बुद्ध धर्म को, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैन धर्म को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है द संघा। बोथ लॉर्ड बुद्धा एंड द महावीर, दोनों बुद्धा और महावीर स्वामी felt that people who had left their homes, जैसे कि उन दोनों ने अपनी ज्ञान को अर्जन करने के लिए, जैसे उन्होंने कम उम्र की अवस्था में ही अपना घर छोड़ दिया था और एक नए ज्ञान को अर्जन करने के लिए वो निकल पड़े थे, और जैसे ही वो लोग साथ साथ रहे, फॉर देयर पर्पस, उन दोनों का केवल एक ही उद्देश्य था, दे एस्टेब्लिश मैनी मोनार्ची आल्सो नोन एज बिहार, जिसमें लोगों को अपने ज्ञान से वो अग्रसर कर सके, एक नई दिशा दिखा सके, उन्होंने उन दोनों ने नाम दिया बिहार का। बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्धिस्ट साधु थे, लिव्ड इन दीज मोनार्चरीज एंड बोथ मैन एंड द वीमन कुड जॉइन दिस, और इस संघ में औरत और आदमियों को एक साथ संघ में ज्ञान अर्जन करने की अनुमति। सभी को मोक्ष अर्थात बिहार के लिए जाना चाहिए। बिहार का मतलब होता है जगह जगह जाकर अपने ज्ञान का अर्जन करना। The men were called the monks while the women were called the nuns, और वह आदमी या औरत जो एक महान साधु की तरह ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, उन्हें हम नन की संज्ञा देते हैं। They lead a simple life, उनका उद्देश्य होता है कि साधारण जीवन जीना, spend more their time in the meditation, ज्यादा से ज्यादा समय अपना ध्यान और योग में बिताना, एंड कलेक्टिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा, और बुद्ध के जो भी सिद्धांत हैं उनको अपनाना। द मोनाचस वर ऑल्सो ग्रेट सेंटर्स ऑफ द एजुकेशन, और ऐसे नए नए धार्मिक संस्थानों को, शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देना जिनमें इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके। Some of the monasteries, especially in the Western India, are the fine example of the artist skills. Okay, that kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.